friends, welcome to my channel. Today we are going to talk about Taurus Ascendant and how the month of August 22 is going to pan out for the Taurus Ascendant people. Let us first start with the Ascendant Lord. For Taurus Ascendant, Venus is the Ascendant Lord, and if it is well placed in the horoscope, then such individuals are very happy in their lives. They enjoy their lives and are also found to be very rich. In the month of August, Ascendant Lord Venus is passing through the third house where it is going to be aspected by the Saturn through the seventh aspect, and the third house sign owner is Moon because Cancer is the sign that falls in the third house and Cancer is a movable sign. It means that the person will get opportunities to travel in the month of August and will get benefited from such travels. Third house also indicates marketing, travel, and tourism. People who love to build networks through communication. So all those people who are in these line of work will see traveling at their work front. Third house also indicates younger siblings. So Taurus ascendant people will also work on improving their relationship with the younger siblings. The fourth house lord is Sun, which is stationed in the third house till 16th of August, and post that it will move into its own sign in the fourth house. What it means is that the second half of August will prove to be a very good time for Taurus ascendant people at home. Things will be very peaceful on the domestic front. They'll be able to spend some time with their family members. So overall, it will be a very good month from the domestic happiness perspective. Let us also look at Mars. Mars is the owner of 7th house and 12th house for the Taurus ascendant people and will be transitioning through the first house in the month of August. This Mars is going to provide a lot of energy to Taurus ascendant people and will fuel them with a lot of ambition in this month. Mars is also aspecting its own house in the month of August through the seventh aspect, and at the same time, Jupiter from the 11th house will aspect the seventh house through its ninth aspect. Since both the owner of the house as well as Jupiter is casting its influence on the seventh house, we can certainly say that people who are unmarried have a very high probability of getting married or finding a suitable partner in the month of August. People who are already married will also spend very good time in the company of their spouse. Seventh house lord passing through the first house also means that people come and look for you to seek your opinion or perspective about different things in life. They could come to you purely for their own work related purpose or the problems that they are facing, or they could also be looking for you to strike some kind of a personal or social interaction. Whatever the combination is between 10th of August to 15th of October, it will prove to be a very fruitful time for you to get involved with activities that are related to public domain. For people who have seventh house lord transitioned in the first house in the birth chart, a lot of such people will be involving themselves in dealing with the masses. So you will see such combination in the horoscope of lot of politicians. Now let us come to Rahu. Rahu is transitioning through the 12th house. What it means is that one needs to be very careful about their left eye because Rahu passing through here can harm an individual's left eye, especially if these people are in advanced year of age. 12th house also represents foreign activities or losses, and Rahu also is the significator of the same set of activities. So all those people who are in foreign countries will get tremendously benefited by this movement of Rahu from 12th house. At the same time, they may also see improvement on the work front. You will see that Rahu, when placed in the 12th house or even in the 8th house of the birth chart, such people invite problems in their life from outside. Since this is just a moment of transit, we can say that Rahu will certainly provide them benefits if they are actively engaged in the activities that are related to 12th house. So if you are involved in charity or dealing with foreigners in your
work front, then this again will be a fruitful month for you. Let us look at Mercury. Mercury owns the fifth house and second house for Taurus ascendant people and is a very important planet. The fifth house lord Mercury is going to pass through the fourth house in the month of August, and since fourth house is the negation of fifth house, we can say that all the activities that are indicated by fifth house are not going to see any fruitification in the month of August. So students, people who are in the speculation business, and even those who are actively seeking out romance at this stage will be disappointed in the month of August. They should be patient for some time, as when the Mercury moves into the fifth house, which will happen very soon, then you will see a turnaround in the significations that are indicated by fifth house. So all these people, students, speculators, people who are seeking courtship, they will have a good time when Mercury moves from the fourth to fifth house for them. But within the month of August, 19th to 21st August is a time frame when they can still look to pursue any of these three activities. Jupiter is passing through the 11th house. It is considered a very auspicious position for Jupiter. In fact, all the planets, whenever they are passing through the 11th house from the ascendant, they always provide good results. In this case, Jupiter is going to aspect the third house of younger siblings, fifth house of progeny, and seventh house for marriage through its fifth, seventh, and ninth aspect, respectively. So, people who have recently been married and are planning for a child will see Jupiter blessing them on that front till the time it is stationed here, which would be April 2023. So Jupiter will continue to provide good results to the Taurus ascendant people in the month of August. Saturn is passing through the ninth house and is providing a very good opportunity for people to immigrate to a foreign country. One must also remember that Rahu is also stationed in the 12th house. Therefore, movement to foreign country is getting evoked by two very strong planets in the horoscope. For all those people who are born with Saturn posited in the ninth house, then this combination is something that works wonders for people who decide to move to a foreign country, because Saturn opens door for them to progress in life once they make the decision of moving to a country away from their place of birth. All those people who are in service, they will see progress on the job front in the beginning of the month from 2nd and 3rd August, and then again at the end of the month from 26th to 28th of August. People who are already running a business will not see any conflict in their business, but this is not the right time to make a fresh capital expenditure or to start a new business, because Rahu is posited in the 12th house and there is a very high probability that it will end up causing some kind of a harm to this new investment. There are also certain days in the month when person needs to be careful. These dates are when moon passes through the 6th, 8th and 12th house from your horoscope. So the days when a person needs to be very careful is the very first date, which is 1st of August, 15th, 16th and 17th of August, and 21st to 22nd of August. So in total 6 days when the Taurus ascendant people need to be careful in the month of August. Otherwise, they will see very good progress during this month, coupled with a lot of travel. So this was the snapshot for the Taurus ascendant people for the month of August. If you have liked my video, please do subscribe to my channel, and thank you very much for watching. नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वृषभ लग्न वाले लोगों के लिए अगस्त 2022 का महीना किस तरह से साबित होगा। सबसे पहले हम लोग लग्नेश से शुरुआत करते हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए लग्नेश शुक्र होता है, और अगर आपका लग्न वृषभ है तो आप एक बहुत ही अच्छे लग्न में पैदा हुए हैं। वृषभ लग्न के लोग काफी खुश मिजाज होते हैं क्योंकि शुक्र यहाँ पर उनको वैसा बनाता है। इन लोगों के लिए चाहे किसी भी सांपत्तिक परिस्थिति में पैदा हुए हों, इनका जो जीवन के प्रति दृष्टिकोण रहता है वो मौज करने का रहता है। ये लोग इनके कोई रिसोर्सेज नहीं भी होते हैं तो भी वहां पर भी ये लोग
जीवन का आनंद ले लेते हैं। तो इस तरह से वृषभ लग्न वालों का स्वभाव होता है। और शुक्र अगर मजबूत होता है तो ये लोग बहुत अच्छी सांपत्तिक स्थिति वाले घर में ही पैदा होते हैं। तो अभी अगर हम अगस्त की बात करते हैं तो लग्नेश तृतीय भाव से भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर शुक्र पर शनि की दृष्टि पड़ेगी सातवीं। और चूंकि यहाँ पर कर्क राशि आती है जो कि एक चर राशि है, तो यहाँ पर लोगों के लिए अगस्त के महीने में घूमने के बहुत मौके बनेंगे। काफ़ी इनको घूमना पड़ेगा इस तरह के, चाहे तो वो वर्क फ्रंट पे हो, काम से रिलेटेड ऑफिस का काम हो सकता है या पर्सनल ट्रैवल भी हो सकता है। तृतीय भाव से आप जो भी प्रोफेशंस देखते हैं जैसे मार्केटिंग है, पब्लिक रिलेशनशिप, जो लोग प्रिंटिंग प्रेस में काम करते हैं, मास कम्युनिकेशंस में काम करते हैं, या जो लोग नेटवर्क बनाने का काम करते हैं बिजनेसेस के लिए अपनी कम्युनिकेशन स्किल से, तो उन सब लोगों को भी अपने काम में काफ़ी ट्रैवलिंग करना पड़ेगा अगस्त के महीने में। तीसरे भाव से आप अपने छोटे भाई बहनों को देखते हैं, तो इस समय आप अगर उनके साथ समय बिताते हैं अगस्त में तो आप लोगों को उनके साथ भी रिलेशनशिप इम्प्रूव करने में बहुत मदद मिलेगी। अभी हम चतुर्थ भाव को देखते हैं। चतुर्थ भाव का स्वामी सूर्य तृतीय भाव से गुजर रहा है 16 अगस्त तक। तो महीने पहले महीने के जो 16 दिन हैं वो ग्रह सुख के हिसाब से कुछ खास अच्छे नहीं बीतेंगे, लेकिन 16 अगस्त के बाद जब सूर्य अपने ही भाव में आ जाएगा तो ये लोग देखेंगे कि इनको घर में काफ़ी सुख मिलेगा। परिवार के सदस्यों के साथ ये समय बिताएंगे तो बहुत अच्छा समय निकलेगा और घर पे काफ़ी शांतता का ये लोग अनुभव करेंगे। चौथे भाव से आप मानसिक शांति भी देखते हैं। तो अगर चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थ में ही आ जाए या चतुर्थेश लग्न कुंडली में बहुत मजबूत हो तो ऐसे व्यक्तियों को भी मानसिक शांति की अनुभूति हमेशा होती रहती है। अभी हम मंगल को देखते हैं। मंगल पहले भाव से गुजर रहा है। पहले भाव से गुजरते हुए यह अपनी सातवीं दृष्टि से अपने ही भाव को देख रहा है, सप्तम भाव को। जब भी मंगल लग्न से गुजरता है तो व्यक्ति को आक्रामक बनाता है, गुस्सैल बनाता है, लेकिन व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी निर्णय भी लेने लगता है क्योंकि ये मंगल का स्वभाव है और वो प्रथम भाव से गुजरते हुए आपकी पर्सनालिटी और सोच विचार पर अपना प्रभाव जरूर छोड़ता है। यहाँ पे मंगल उपस्थित होके इन लोगों को बहुत एम्बिशन प्रदान करेगा अगस्त के महीने में। और यहाँ से चूंकि वो सातवीं दृष्टि से अपने भाव को देखेगा तो सातवां भाव व्यक्ति की शादी का होता है, पति या पत्नी को दिखाता है या बिजनेस पार्टनर को भी दिखाता है। यहाँ पर गुरु नवे दृष्टि से सातवें भाव को देखेंगे। गुरु स्वयं 11वें भाव में विद्यमान है, तो यहाँ से ये सातवें भाव को देखेंगे और मंगल भी अपनी सातवीं दृष्टि डालेगा। तो जितने भी लोगों को शादी नहीं हुआ है अभी तक या वो बहुत समय से किसी पार्टनर की तलाश में है, अगस्त में ये इवेंट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बलवान हो जाती है क्योंकि दो दो बड़े ग्रह आपके सप्तम भाव को देखेंगे। एक और भी इसका परिणाम निकलता है जब सप्तम भाव का स्वामी लग्न से गुजरे। प्रथम भाव यानी कि लग्न हम खुद होते हैं और सप्तम भाव आपका ऑपोजिशन भी कहलाता है। तो जब सप्तम का स्वामी प्रथम भाव में जाता है इसका मतलब ये होता है कि आपके अपोजिशन का आदमी आपके पास आता है। और इसका उल्टा अगर लग्नेश सप्तम में बैठा हो तो आपको दूसरे व्यक्ति के पास जाना पड़ता है। तो इस केस में आपको 10 अगस्त से लेके 15 अक्टूबर तक जब तक मंगल प्रथम भाव में बैठा रहेगा आप देखेंगे लोग आपको खोजते हुए आएंगे। अब वो आपकी ओपिनियन लेने के लिए आते हैं या आपका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं। इसमें कंटेक्स्ट का भी फर्क पड़ता है। हो सकता है कि वो आपके पास अपनी कोई समस्या लेके आए जिसको आप सुलझाएं, या वो आपका दृष्टिकोण जानना चाहते हैं उनके काम के प्रति, या ये कोई सोशल इंटरेक्शन भी हो सकता है। लेकिन इतनी बात तो तय है कि लोग आपके पास ढूंढते हुए आपकी सलाह लेने के लिए ज़रूर आएंगे इस टाइम फ्रेम के दौरान। तो जितने भी लोग सोशल सर्विस में इंगेज हैं या पॉलिटिक्स में वगैरह ऑलरेडी पार्टिसिपेट करते हैं उनके लिए भी ये बहुत अच्छा समय रहेगा 10 अगस्त से 15 अक्टूबर का। क्योंकि परिस्थिति ऐसी बन रही है कि लोग आके आपको खोजेंगे और आपसे राय मांगेंगे। तो जितने भी लोगों की लग्न कुंडली में ये कॉम्बिनेशन होता है सप्तमेश प्रथम में बैठा हुआ, ऐसे आप बहुत से लोगों को राजनीति में देखेंगे या ऐसे नौकरी या जब बिजनेसेस में देखेंगे जहाँ पे कि उनका पाला बड़े जन समुदाय से पड़ता है। लेकिन ये फिर योग आपको अपनी लग्न कुंडली में चाहिए। अभी तो ये खाली गोचर में बन रहा है। अभी राहु को भी देखते हैं। राहु यहाँ पे 12वें भाव से पास हो रहा है। तो राहु 12वें भाव से जाना, 12वें भाव से आपकी बाई आंख भी दिखती है। तो जो लोग थोड़े
ओल्ड एज के लोग हैं उनको थोड़ा अपना बाईं आंख को संभाल के रखना पड़ेगा, क्योंकि राहु यहाँ से जाते समय उसमें छिद्र लगाने का काम करता है। लेकिन अगर आपका कार्य ऐसा है कि आप फॉरेनर्स के साथ ही डील करते हैं, या आप चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के साथ इन्वॉल्व हैं, या आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, ये सारी चीजें 12वें भाव से देखी जाती हैं। तो राहु यहाँ से जाता हुआ आपको बहुत लाभ करवा के जाएगा इन सारी चीजों में, क्योंकि राहु यही सब चीजें स्वयं भी दिखाता है। नहीं तो अदरवाइज फिर अगर आप इन प्रोफेशन में नहीं हैं, तो आपको कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से बचना चाहिए, क्योंकि 12वें भाव से गुजरता राहु कई बार व्यक्ति को फाइनेंशियली नुकसान पहुंचा कर भी जाता है। जितने भी लोगों की लग्न कुंडली में राहु 12वें भाव में होता है, तो ऐसे लोग सामने से मुसीबत को बुलाते हैं। उनकी जिंदगी अच्छी चल रही होती है, लेकिन वो प्रॉब्लम को इनवाइट करते हैं अपने जीवन में। फिर बुध पे नजर डालते हैं। बुध वृषभ लग्न वालों के लिए द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी होता है, और ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रह है वृषभ लग्न वालों के लिए। तो पंचमेश बुध चतुर्थ भाव से निकल रहे हैं। पंचमेश का चतुर्थ भाव से जाना है, यानी जितनी भी चीजें पंचम भाव से दिखाई जाती हैं उन सब का निगेट हो जाना, क्योंकि ये उससे 12वां पड़ता है, चौथा भाव। सो जितने भी लोग स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे हैं, जितने भी लोग स्पेक्यूलेटर्स हैं, शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं, या जितने भी लोग रोमांटिक किस्म के हैं, हमेशा किसी न किसी रिलेशनशिप में अंदर बाहर करने में इंटरेस्टेड रहते हैं, ये सारे लोगों के लिए महीना कुछ खास अच्छा साबित नहीं होगा। अगस्त में सभी लोग अपने अपने इस पर संघर्ष ही करेंगे अगर इन चीज़ों में पार्टिसिपेट करते हैं। तो इनको थोड़ा समय तक रुकना पड़ेगा। कुछ समय बाद जब बुध यहाँ से निकल के पंचम भाव में आ जाएगा, तो इनको अपने फेवर में सारे परिणाम मिलना शुरू हो जाएंगे। एक नज़र गुरु पे डालते हैं। गुरु 11वें भाव से गुजर रहे हैं। वृषभ लग्न वालों के लिए ये अष्टमेश भी बनते हैं और लाभेश भी बनते हैं। वैसे भी जितने भी ग्रह 11वें भाव से गुजरते हैं लग्न से, अगर आप गिने तो हमेशा अच्छा परिणाम ही देखे जाते हैं। गुरु का यहाँ से गुजरना एक बहुत ही अच्छी कंडीशन होती है, और ये पूरा समय अप्रैल 2023 तक का, अप्रैल 22 से लेके एक साल तक गुरु यहाँ बैठेंगे। ये बहुत अच्छा समय रहेगा अपने छोटे भाई बहन की तरक्की को लेके। अगर आपकी संतान नहीं है, शादी वगैरह हो चुकी है, अभी यंग एज में है, तो आपको इस समय संतान की प्राप्ति भी हो सकती है अप्रैल 2023 तक। और अगर शादी नहीं हुई है, तो गुरु अपनी नवी दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, तो ये समय शादी करने के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। कुल मिला के गुरु का स्थानांतरण 11वें भाव से वृषभ लग्न वालों के लिए अच्छा ही परिणाम देगा। शनि अब पूरी तरीके से 9वें भाव में विराजमान हो चुके हैं। अभी तक उनका वक्री भ्रमण चालू था कुंभ राशि से मकर राशि की तरफ। तो अब शनि जब यहाँ बैठ गए हैं, तो ये व्यक्ति को एक मौका प्रदान करेंगे विदेश में स्थानांतरण करने का। जो लोग बाहर जाकर बस जाना चाहते हैं उनके लिए भी ये काफी अच्छा समय रहेगा, अगर उस दिशा में प्रयास करें तो। दो ग्रह इस बार विदेश यात्रा को दिखा रहे हैं अगस्त में। राहु स्वयं भी 12वें भाव से गुजरता हुआ फॉरेन यात्रा का ही कारक है, और शनि भी 9वें भाव में आया हुआ वही दिखाता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में ही शनि 9वें भाव में होता है, तो ये ऐसे लोग जब तक फॉरेन नहीं जाते तब तक इन लोगों की तरक्की होती नहीं है। शनि ऐसे लोगों के लिए हमेशा तरक्की के दरवाजे खोल देता है, अगर वो इस बात को फॉलो करें और विदेश जाने का, सेटल डाउन होने का प्लान बनाते हैं। तो जितने भी लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए अच्छा समय है कार्यस्थल पे। खास करके महीने के शुरू में 2-3 अगस्त 2 दिन ऐसे हैं जब कार्यस्थल पे अच्छा समय बीतेगा, और आखिरी में यानी 26, 27, 28 तारीख 3 दिन ऐसे हैं अगस्त में जब आपको कार्यस्थल पे जो है चमकने का मौका मिलेगा। जितने भी लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है कि सप्तमेश अपने ही भाव को देख रहे हैं लग्न स्थान पर बैठकर। लेकिन अगर आप कुछ नया बिजनेस चालू करना चाह रहे हैं, या कई बार व्यक्ति नए लाइन ऑफ बिजनेस में चला जाता है, या वो बोलता है कि मैं, मान लीजिए कि कपड़ों का धंधा कर रहा हूँ, तो अब मैं कुछ नया बिजनेस चालू करता हूँ। एक बिजनेस चालू होते रहते हुए भी दूसरा बिजनेस खोलते हैं, तो उनको जो पैसा लगाना पड़ता है नए बिजनेस में उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो वो इस समय नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु 12वें भाव से गुजरता हुआ व्यक्ति को फाइनेंशियली भी चोट पहुंचाता हुआ जाता है। तो अगर ऑलरेडी एक बिजनेस चल रहा है, तो वो जैसा चल रहा है उसको चलाते रहिए, लेकिन नए बिजनेस में हाथ पांव अभी मत मारिए। अगस्त के महीने में तो अवॉइड कीजिए। कि हर महीने में कुछ दिन ऐसे होते हैं जब व्यक्ति को कोई भी नया डिसीजन लेना टालना चाहिए।
तो अगस्त में ये वाले दिन है जब चंद्र आपके 12, 6 और 8वें भाव से गुजरेगा, यानी कि 1 अगस्त, 15, 16 और 17 अगस्त, और 21, 22 और 23 अगस्त। तो ये दिन है जब आप सावधानी पूर्वक रहिए अगस्त में, और आप देखेंगे कि आप लोगों का महीना बहुत अच्छा गुजरेगा। कुल मिला के अच्छा समय ही है वृषभ लग्न वालों के लिए। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।